Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Wahur. Now student, today's our concept is empirical formula and rules to find out the empirical formula. In my last video lecture, already we have discussed this concept. Now again I am going to repeat with different examples. Now what is molecular formula? What is empirical formula? How to find out empirical formula and how to find out the molecular formula. If you remember what is molecular formula? Now molecular formula means we can say the formula which gives actual number of atom of different elements present in a given molecules or present in a given compound. For example, I am writing here butane. The molecular formula of butane is C4H10. Molecular formula of butane is C4H10. Now, actual number of atom of different elements means we can say there are 4 carbon and how many hydrogen atoms are there? 10. Now 4 carbon, 10 hydrogen. Actually it is called as actual number, or this formula is called as molecular formula. The formula which indicates या which represent the actual number of atom of different elements. अब यहाँ कौन से constituent elements हैं जिससे butane बना हुआ है? One is your carbon and second one is your hydrogen. Now actual number मतलब उनकी quantity. कितने कार्बन है इधर? 4. How many hydrogen atoms are there? 10. Now that is called as the molecular formula. And what is your empirical formula? Now empirical formula means we can say the formula which indicates simplest whole number ratio. A formula which indicates simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio, and this formula is called as empirical formula. Simplest whole number ratio of different atoms, elements present in a given molecules or present in a given compounds. जो compounds या molecule की जो constituent atoms रहते, constituent particles रहते, उनका whole number ratio, simplest whole number ratio, and that is called as empirical formula. And you know how to find out the empirical formula. Now suppose I have to write the empirical EF, मतलब empirical formula of butane. पहले उसके constituent elements लिखो. Right, its constituent elements. Now the constituent elements of butane is carbon and hydrogen. Right, the number of carbon present, that is 4. Number of hydrogen 10. Okay, now find out its ratio. Read your table. 2 का table read करो. Now 2 to the 4 raised to 2 5 is a 10. So this ratio 2:5. Now this ratio, it is the empirical formula of butane. It is the empirical formula of butane, and this is the difference between molecular formula and empirical formula. Molecular formula में अपन actual quantity find out करेंगे. Actual atoms कितने present है, and in empirical formula we will find out its simplest whole number ratio. Now how to find out the empirical formula? That parts already we have discussed. Now I have to solve one more example based on empirical formula. Now to find out the empirical formula, some steps are given. Very first and basic rule to find out empirical formula. Now step number 1, empirical formula find out करने के लिए पहला step क्या रहता है? Percentage of element should be given. What is first step? Percentage of element should be given, and the sum of percentage of element should be 100. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट शुड बी गिवन, और वो जो भी परसेंटेज देगा उनका एडिशन कितना होना चाहिए? 100. इफ इट इज नॉट 100, रिमेनिंग इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. अगर ये 100 नहीं रहा तो रिमेनिंग क्या रहेगा आप लोगों का? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ये पहला बेसिक रूल है उसका. Percentage of element should be given, and the addition of sum of percentage of element should be 100, and if it not 100, then remaining is the percentage of oxygen. Now second point, convert percentage into gram.
कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। सेकेंड रूल में मैं क्या करूंगा, वो जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विच इज गिवन दैट वी विल कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। ओके, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, अपन वो एप्लीकेशन देखेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व वन एग्जांपल। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर थ्योरेटिकली व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो पहले मैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स देखूंगा, देन कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्राम। नाउ देन कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल, कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स। अब कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स मीन्स वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यहाँ जो मुझे एलिमेंट्स दिए हुए रहेंगे उनका मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब वो कैसा फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर नाउ मोल्स ऑफ एलिमेंट जिसका अपन फाइंड आउट कर रहे हैं इज इक्वल टू गिवन मास, is equal to given mass divided by its atomic mass, divided by its atomic mass. Convert gram into moles, मतलब मैं moles फाइंड आउट करूंगा। कैसा मैं मोल्स फाइंड आउट करूंगा, मोल्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। वो जो भी एलिमेंट्स है उसका ग्राम को अपन उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। नाउ दिस इज द थर्ड स्टेप, कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स। नाउ इन फोर्थ फाइनल स्टेप वी विल फाइंड आउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, हाउ टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मैं कैसा फाइंड आउट करूंगा, नाउ द मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। यहां मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, मोल्स ऑफ एलिमेंट। द मोल्स ऑफ एलिमेंट्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। moles of element is divided by smallest possible value. For example, जैसे मेरे पास में 3 एलिमेंट्स हैं x, y एंड z। अब x का नंबर ऑफ मोल्स आया फॉर एग्जाम्पल 4.002, y का नंबर ऑफ मोल्स आया 2.001 एंड z का नंबर ऑफ मोल्स आया फॉर एग्जाम्पल 1.001। नाउ दिस इज द मोल्स ऑफ x, y एंड z। अब ये मोल्स को मैं कन्वर्ट करूंगा simplest whole number ratio में। Now find out the simplest whole number ratio of x. How to find out the simplest whole number ratio of x? So the moles of x, अब यहाँ moles of x कितना है 4.002। Now the moles of x is divided by, उसको मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू अमंग देम। अब यहां पर एक वैल्यू है 4.02, दूसरा वैल्यू है 2.001, थर्ड वैल्यू है 1.001। विच वन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, 1.001। तो अपन इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 1.001, योर आंसर विल बी 4.002, नियर अबाउट वी विल टेक इट 4। Now find out the simplest ratio of y, simplest ratio of y। अब मैं y का simplest ratio फाइंड आउट करूंगा, कैसा फाइंड आउट करेंगे, moles of y that is your 2.001 is divided by smallest possible value among them। अब इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपका 1.001, मीन्स योर आंसर विल बी 2.001। ऐसे फाइंड आउट करो मोल्स ऑफ z। Okay, now these are the rules to find out the empirical formula. Now this simplest ratio is called as empirical formula. अब उसके बाद क्या करो, आपका ये simplest ratio फाइंड आउट हो गया, x का simplest ratio है 4 नियर अबाउट, y का simplest ratio है 2। now write elements one by one, x, y, z, और उनका simplest ratio यहाँ बॉटम में लिखो। उनका सिंपलेस्ट रेशियो कहाँ लिखेंगे अपन, वो एलिमेंट्स के बॉटम में। नाउ दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। इसको मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। सो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये मेथड कौन सा हो गया आपका, टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एक मरतबा मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया, उसके बाद अपन फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ
to find out the molecular formula, the formula is given. Now MF means molecular formula. MF is equal to R into EF. MF is equal to R into EF. Now MF means molecular formula is equal to R is the factor, वो मैं बताता हूँ, and EF is the empirical formula. अभी मैंने यहाँ empirical formula find out किया था. Okay, now how to find out the R? R is equal to मोलार मास, गिवन मोलार मास. अब ये मोलार मास आपको न्यूमेरिकल में देगा वो, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं. R इज इक्वल टू गिवन मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. मैं R कैसा फाइंड आउट करूंगा? मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. अब हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास? अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मैं कैसा फाइंड आउट करूंगा? जो भी मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा उनमें एटॉमिक मासेस की मैं एडिशन करूंगा. ये याद रखो. थ्योरेटिकली एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं. कैसा फाइंड आउट करूंगा मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास? द sum of atomic masses of elements present in a given empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनके एटॉमिक मासेस की मैं एडिशन करूंगा. उनके एटॉमिक मासेस के अपन क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. अब एक थ्योरेटिकली याद रखो. अब वी विल going to start one numerical based on this lecture which I have delivered here in last 10 minutes. मैंने यहाँ लास्ट 10 मिनट्स में जो भी पॉइंट डिस्कस किया उसके बेस पर अपन वन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम. ओके, सो आवर कंसेप्ट इज फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के स्टेप्स अभी अपन ने डिस्कस किए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एंट्रेंस एंड रेगुलर एग्जाम एज वेल. नाउ स्टूडेंट, दिस कंसेप्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला वी विल स्टार्ट विथ वन प्रॉपर एग्जाम्पल. एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेता हूं मैं टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. सपोज वन प्रॉब्लम इज गिवन टू यू. One problem is given to you. A compound contain. Problem is given to you. A compound contain. See, a simple problem is given to you. A compound contain. Yes, a compound contain 4.07% hydrogen. 4.07% hydrogen. Okay, first element is given 4.07% hydrogen, 24.7% carbon, 24.7% carbon. Okay, a compound containing 4.07% hydrogen, 24.7% carbon, 71.65% Cl, that is chlorine. Okay, 71.65% chlorine by mass. Find out its empirical formula. Find out its empirical formula. If find out its empirical formula if molar mass of compound is molar mass of compound is, now here molar mass of compound is given to you. Molar mass of compound is 98.96 gram. 98.96 gram. Okay, now this is your problem. A compound contain 4.07% hydrogen, 24.7% carbon, 71.65% chlorine by mass. Find out its empirical formula if molar mass of compound is 98.96 gram. Okay, now we have to find out the empirical formula and molecular formula. Now atomic masses are given to you. Atomic masses of constituent elements are given to you. Now atomic mass of hydrogen, that is 1.00. Atomic mass of carbon is given to you, that is 12.5.
carbon is given to you 12.00. Now atomic mass of Cl is given to you 35.65. Okay, atomic masses are given to you 35.453. Now this is your numerical and we have to find out its a empirical formula. देखो यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को उसका empirical formula find out करना है. Now what is your question? A compound contain here 4.07% hydrogen, then 24.7% carbon, after that 71.65% chlorine, and atomic mass of molar mass of that compound is given, it is 98.96 gram. We have to find out its empirical formula and its molecular formula. अपने को empirical formula और उसका molecular formula find out करने का है. Okay, now this problem we will solve by looking to one table. मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ और वो टेबल की मदद से विल ट्राई टू सॉल्व दिस गिवन प्रॉब्लम. ना फर्स्ट वन, percentage of element which is given to you, percentage of elements. Okay, now उसके पहले अपन लेंगे name of elements. First column is your name of element, second percentage of elements, then elements mass in gram. Yes, mass of element in gram. Now E means element in gram. Now in next step we will convert it into, अब उसको अपन काय में convert करेंगे, we will convert it into moles of elements, our third step. And now final fourth step is simplest ratio. लास्ट स्टेप क्या आएगा मेरा, simplest ratio. Now these are the four steps and by looking to these steps we will try to find out its empirical formula. पहले name of elements, percentage of elements. Now our second step, convert percentage of elements into gram, that is mass of element in gram. उसके बाद moles of elements and then simplest ratio, और फिर finally we will try to write its empirical formula. Now here name of element, first element is given hydrogen, second one carbon, and third one is your Cl. Now percentage of hydrogen is given, it is 4.07%. Carbon it is 24.7% and Cl it is 71.65%. Now here percentage of element is given to you. अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट शुड बी 100. मैं ये तीनों का एडिशन करूंगा और ये एडिशन कितना आना चाहिए, 100. इफ इट इज नॉट 100 देन रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. अगर ये 100 नहीं हुआ तो रिमेनिंग किसका परसेंटेज रहेगा, ऑक्सीजन का. एडिशन करो यहां पर. नाउ दिस इज 24 plus 4, it is 28, near about 28. Now 28 and this is your 71, means near about it become 99. अब ये 7 7 65 इसका आप लोग एडिशन करेंगे वो 99 आएगा. मीन्स हेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट इज 99.9%. अब ये जो परसेंटेज गिवन है, अगर ये एलिमेंट्स का मैं एडिशन करूंगा तो ये कितना आएगा आपका 99.99%. अब 99.99% मीन्स नियरली इक्वल टू 100. मतलब ये कितना हो गया आप लोगों का 100. तो इज देयर एनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. अब यहां पर जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा क्या, no, because already it is 100. Now my first step is over. The sum of percentage of elements should be 100 and if it is not 100 then remaining is the oxygen. So मेरे given compound में oxygen नहीं है. Only 3 elements are there, hydrogen, carbon and Cl. Now second, convert that percentage into gram. अब देखो ग्राम में कन्वर्ट करते वक्त always try to remember the given compound is in 100%, मतलब 100 ग्राम है. मैं यहाँ क्या कंसिडर करूंगा कि वो जो given compound है
वो अपन कितने से बिगिन स्टार्ट करेंगे, 100 ग्राम से। अब अगर मेरे पास में 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें हाइड्रोजन कितना है, 4.07%, मतलब 4.07 ग्राम। जस्ट मैं क्या करूंगा, परसेंट की जगह कौन सा सिंबल लिखूंगा, ग्राम। मतलब मेरे 100 ग्राम कंपाउंड में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.7 ग्राम कार्बन है एंड 71.65 ग्राम ये क्या रहेगा मेरा Cl। सिर्फ परसेंटेज रिमूव करो एंड राइट एज इट इज। सो द परसेंट ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 4.07 ग्राम। नाउ हियर कार्बन इज 24.7 ग्राम एंड Cl इज 70.65 ग्राम। Cl क्या हो जाएगा, 70.65 ग्राम। स्टूडेंट याद रखो ये पॉइंट, परसेंट का मतलब रहता 100 एंड व्हेन वी विल बिगिन द रिएक्शन सो वी विल कंसिडर द गिवन कंपाउंड इज इनिशियली 100 ग्राम एंड आउट ऑफ दैट 100 ग्राम दिस मच ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दिस मच ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट एंड दिस मच ग्राम ऑफ Cl इज प्रेजेंट। वो मेरा कंसिडरेशन रहेगा। ओके, नाउ मेरा सेकंड स्टेप हो गया कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। अब थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स। अब मैं ग्राम इनटू मोल्स, मुझे पहले हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है। अब मैं हाइड्रोजन के ग्राम्स को मोल्स में कैसा कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल्स। अपन क्या करेंगे, हियर द मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। अब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया यहां पर, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 4.07 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन इज 4.07 ग्राम एंड इट्स एटॉमिक मास इज गिवन 1.008। इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 1.008। नाउ फाइंड आउट इट्स मोल्स। नाउ मोल्स ऑफ कार्बन, अब मैं फाइंड आउट करूंगा मोल्स ऑफ कार्बन। कैसा फाइंड आउट करूंगा मोल्स ऑफ कार्बन, mass of carbon that is 24.7 gram divided by its atomic mass. Atomic mass of carbon is 12. So right here 24.7 upon 12. Now this is the moles of carbon. Now come to Cl. The mass of Cl, okay, that is 71.65 divided by atomic mass of Cl, it is 35.453. Okay, it is 35.453. Now this is the moles of, ये हो जाएगा आपका moles of Cl। अब फाइंड आउट करो ना, 4.07 अपॉन 1.008। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट हियर 4.07। ये कितने मोल्स आएगा, 4.04। अगर मैं 24.7 करूंगा, 24.7 नियर अबाउट दिस फिगर विल बिकम 2.0225। ये फिगर कितना हो जाएगा, 2.0225। ओके, एक सिंपल कंसेप्ट आप लोगों का। नाउ दिस वन इज योर सिंपलेस्ट रेशियो, ये हो गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, नाउ we have find out here the moles of carbon that become 2.0225. अब मैं find out करूंगा moles of Cl that is 71.65 divided by 35.453. This answer will be near about 2.021. ये आंसर कितना आएगा, 2.021। तो देखो मेरे जो मोल्स मैंने फाइंड आउट किया, अब कार्बन का मोल्स कितना है, 4.04। Now here hydrogen become 2.0225, here Cl become 2.021. ये मैंने find out किया moles and my last step is to find out the simplest ratio. अब मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा। अब रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्या मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट्स, मुझे जिसका रेशियो फाइंड आउट करना है। अब सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, मुझे हाइड्रोजन का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, क्या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 4.04 डिवाइडेड बाय
पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग दैम। अब मैंने यहाँ 3 मोल्स फाइंड आउट किया, वो तीनों मोल्स में किसका वैल्यू स्मॉलेस्ट है वो चेक करो और हर वैल्यू को उससे डिवाइड करो। अब यहाँ 2.0225 एंड हेयर 2.021, तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा? 2.021, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। Agree? Now find out the ratio of carbon. Now to find out the ratio of carbon, what we will do here, the moles of carbon divided by lowest possible value. अब lowest possible value कौन सा है? 2.021, तो मैं इसको भी किससे डिवाइड करूंगा? 2.021 से। So this become 2.0225 upon 2.021. Now here likewise 2.021 divided by 2.021. Now this is the method to find out the moles, convert moles into simplest ratio. अब एक simple mathematics से सब कुछ समझता है यहाँ पर. Now this quantity will become 2, this is near about 1 and this one is your near about 1. Now this is the simplest ratio of hydrogen, that is 2, simplest ratio of carbon, that is 1, and this one is your simplest ratio of Cl, 1. अब ये simplest ratio मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि मैं एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन क्या बोलता है कि द फार्मूला विच रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जिसमें मुझे काय की इंफॉर्मेशन मिलेंगी? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की इंफॉर्मेशन मिलेंगी. वो आई ना इधर 2 1 1. नाउ मैं प्रॉब्लम रफ कर रहा हूं, आपको लिखना हो गया होगा. नोट डाउन दिस पॉइंट. नाउ व्हेन यू विल सी हियर आफ्टर गेटिंग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मैं यहां लिखूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या लिखूंगा मैं इधर? एम्पिरिकल फॉर्मूला. नाउ टू राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो एलिमेंट्स दिए हुए उसको 1 by 1 लिखो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड Cl. कौन से एलिमेंट्स दिए हुए मुझे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड Cl. अब उनका जो रेशियो आया उसके बॉटम में लिखो. कार्बन का रेशियो कितना है? 1. हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 2. Cl का रेशियो कितना है? 1. सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH2Cl. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा मेरा यहाँ पर? CH2Cl. 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 Cl. सो दिस रेशियो इज 1:2:1. क्या आ गया मेरा रेशियो? 1:2:1. अब ये रेशियो पर से अपन फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट विल फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. मैं पहले वो फाइंड आउट कर लेता हूं. क्या फाइंड आउट करूंगा मैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करते वक्त में मेरा कंसेप्ट क्या था कि जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मासेस की मैं एडिशन करूंगा. मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 into atomic mass of hydrogen plus atomic mass of Cl. मेरा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो रेशियो आया है उसके हिसाब से मैं एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ऐड करूंगा एंड विल फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, द सम ऑफ atomic masses of elements present in a given empirical formula. अब मेरे पास में कार्बन का एटॉमिक मास मुझे दिया था. कितना था कार्बन का एटॉमिक मास? 1.008 प्लस 2 इंटू, ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.00. Now atomic mass of hydrogen is given, that is 2 into 1.008 plus atomic mass of Cl is given, it is 35.453. अब इन सब एटॉमिक मासेस की एडिशन करो. इन सब एटॉमिक मासेस के अपन यहाँ क्या करेंगे? एडिशन. जो भी आंसर आएगा दैट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ये क्या हो जाएगा आपका? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. करके देखो एडिशन. नाउ दिस बिकम 2.016. इन सब की एडिशन करो, दैट विल बिकम 49.48. ये क्या हो जाएगा? 49.48 ग्राम. ये हो गया मेरा एम्पिरिकल फार्मूला मास. एम्पिरिकल फार्मूला में जो एलिमेंट्स आए थे उनके रेशियो के हिसाब से मैंने उनके एटॉमिक मासेस की क्या किया? वहां पर एडिशन किया हुआ है. नाउ फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू R इंटू एम्पिरिकल फार्मूला.
R into empirical formula. Now my empirical formula is CH2Cl. सिर्फ मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? R. And how to find out the R? So R is equal to given molar mass. R क्या हो जाएगा? Given molar mass upon empirical formula mass. Given molar mass upon empirical formula mass. Okay. अब given molar mass is 98.96 upon empirical formula mass आया 49.48. so this answer near about equal to 2. अब ये आंसर क्या हो जाएगा? नियर अबाउट इक्वल टू 2. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ R here, राइट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब मुझे फाइनली क्या लिखने का है यहाँ पर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है. नाउ दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Okay, so now my molecular formula become, अब देखो मेरा molecular formula क्या हो जाएगा? Now molecular formula is equal to R into empirical formula. Now R is 2 into empirical formula is CH2Cl. So its molecular formula become क्या हो जाएगा? molecular formula C2H4Cl2. What is molecular formula? क्या हो जाएगा मेरा molecular formula? C2H4Cl. मतलब empirical formula को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. ये 2 क्या है? R. और वो R कहाँ से आया? From molar mass divided by empirical formula mass. तो this is my final answer. और ये मेथड है to find out the empirical formula. ये मेथड क्या है मेरा? To find out the empirical formula. So student, hope आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. सो हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला, उसके चारों स्टेप याद करके रखो. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट शुड बी गिवन. जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा उसका मैं एडिशन करूंगा. वो एडिशन अगर 100% नहीं हुआ तो रिमेनिंग ऑक्सीजन, देन परसेंट को कन्वर्ट करेंगे अपन ग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, और फिर मोल्स को कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में. और फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पर से मैं क्या लिखूंगा? एम्पिरिकल फार्मूला. उससे अपन फाइंड आउट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास. तो जो भी यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला आएगा इनमें एटॉमिक मासेस की एडिशन करने का, वो क्या मिलेगा मुझे? एम्पिरिकल फार्मूला मास. और वो एम्पिरिकल फार्मूला मास से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू ऑफ R. गिवन मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास. और फिर उस पर से अपन फाइनली फार्मूला लेंगे. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू R इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेथड टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला. थैंक यू.